to you all. I, Deepika Chandra, first of all, I would like to welcome you in today's event. As we all know that this is the second lecture series on personality development. First we had on 24 karat personality without duality. And today we have on discover the self to empower. Now I'm going to introduce myself. I am a teacher in Government Middle School Murma. I belong from Korea district, Chhattisgarh. I have completed my post-graduation degree in English literature. And about my hobbies, I like all sorts of art. I like music especially. And now I'm going to introduce ISPEL, Indian Society for the Promotion of English Language and Literature. ISPEL is a society established with a motto facilitate to elevate. The taste and bliss in the field of English language and literature. Considering emerging trends in the field, it is the need of hour to blend the trends and mend the minds. iSpell is people's platform to share and impart expertise of renowned academicians and of its members to fraternity and stakeholders. The society believes that everyone can improve his or her ability once opportunities are made available, and potential is always there. The need is only to bring it out from the margin to the center. Now it's time to introducing our the founder and general secretary of ISFAL India and ISFAL CG Forum, who is the chief speaker for today's event, Dr. G. Dr. G. A. Ghanshyam sir. He is the OSD and Directorate Higher Education Chhattisgarh. And personality is not about only our outer look, but also much more. So I would like to mention a word for him. He is a handsome guy. I I had used this word. I have used this word for him because handsome is a person who gives his hand to someone for the help, and of course he is always ready to help the others. So welcome, sir. Now stage is yours, and please share your ideas. Thank you very much, Deepika. Indeed, it's a pleasure always to interact with the teachers and the academicians, and moreover with the budding stars and students. But I do feel dejected sometimes, but later on I do gear up my own self. I do gear up my own energy. I do gear up my own enthusiasm. I do gear up my own spirit from inside, and make me understand one particular fact, that if no one is listening to you, then your heart is listening to you. So I do it for my heart. I do it for my soul. I do it for other souls also, those who are in this company with me. So indeed, it's a topic of great interest for me, may not be for others, but at the same time, I do feel if I am here, then inside me, there is another person who is here with me. So I'm not walking all alone, but I am walking with my own self. To understand the self, this is very important, that we must know ourselves first. Know thyself is the basic principle of our life. If we know ourselves, if we know the inner self of ours, then all the external elements which are disturbing us, all the external elements which are going to make us not to understand the world, we will understand our world in a much better way. So the topic of today's discussion are
expressing my own ideas is concerned is to discover the self to empower. Hope my screen is visible, right? Yes, sir. Yes, sir. So this is just a journey, and success is not a destination. Success is just a journey. So entire life is a journey of self-discovery. You do not know when are you going to discover yourself. हमें ये पता ही नहीं होता कि हम हैं कौन, हम कैसे अपने आप को खोजें, स्वयं की खोज में हम कहाँ जाते हैं, स्वयं की खोज में हम कैसे अपने आप को खोज पाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि यदि दिन भर के समय में आप 10 मिनट निकाल कर अपने लिए अपने साथ अकेले में बैठो तो आपको ऐसा लगेगा जैसे जीवन में आपने एक बेहतरीन इंसान से मुलाकात की है। और यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो जीवन में एक बेहतरीन इंसान से आप मिलने का मौका खो चुके हैं। और वो जो बेहतरीन इंसान है वो बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है, आपके अंदर का मैं है। And when you understand this particular fact that within you there is a person who takes care of you, there is a person who likes you, there is a person who loves you, there is a person who is always with you, there is a person whose heart beats for you. If your heart beats twice like dub dub, then one dub is for you and the second dub is for the person who is inside you. So you are not entitled to anything in this world, but you are empowered to everything in this world. God has given us a beautiful life. भगवान ने हमें बिल्कुल अद्वितीय बनाया है, अनोखा बनाया है, यूनिक बनाया है। और प्रकृति में हर एक चीज जो भगवान ने क्रिएट की है वो यूनिक है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। उसको बनाकर भगवान ने तो सांचा भी तोड़ दिया है। आपके जैसा कोई दुनिया में व्यक्ति हो ही नहीं सकता, और भगवान को भी ये मालूम है कि आपके जैसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता। लेकिन शायद हम इस बात को एहसास नहीं कर पाते हैं, हम इस बात को अनुभव नहीं कर पाते हैं। वी डोंट फील दैट देयर इज अ पर्सन हु इज विथ मी इज अ यूनिक पर्सन। हमें भरोसा दूसरों पर ज्यादा होता है और अपने आप पर बहुत कम होता है। वी बिलीव ऑन अदर्स बट वी डोंट बिलीव ऑन आवरसेल्व्स। So believing on the self is the most important journey of an individual. ये एक अनंत यात्रा है जो हमारे पैदा होने से लेकर हमारे इस जहां से जाने तक लगातार चलती रहती है। और इसमें कई उतार और चढ़ाव दोनों आते हैं, लेकिन इन सारे उतार चढ़ाव के बाद भी हम यदि अपने आप को पहचान पाते हैं, देख पाते हैं, समझ पाते हैं, जान पाते हैं की जरूरत है। जब दो मैं एक साथ हो जाते हैं, मतलब आप और आपके अंदर का मैं जब एक हो जाते हैं तो दो मैं मिलके हम बन जाते हैं। और वो जो हम हैं वो एक धन एक दो नहीं होते हैं, बल्कि एक और एक 11 हो जाते हैं। और वही जो 11 है उसे हमें बनना है, और वही हमारा सबसे बड़ा एम्पावरमेंट है, और उसी की हमारी ये जर्नी है। और इसी जर्नी में मैं आपको अपने साथ लिए चलता हूं और मेरे कुछ अनुभव आपके साथ साझा करता हूं। आई विल ट्राई टू शेयर माय ओन एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ विद यू ऑल। इफ you are benefited by it, I'll really feel happy. If you're not benefited by it, then also I'll feel happy, because I am talking to myself. I feel in that way. So let's continue with this. This is our journey, right? We all travel in a boat, and when we travel in a boat all alone, you are not alone. See, though you are rowing the boat alone, आप अकेले हैं, लेकिन बोट भी तो आपका साथी है। और यदि आप और बोट हैं तो आपके हाथ में जो पतवार है वो भी तो आपके साथी हैं। और आपके हाथ में पतवार साथी है तो जिस पानी में आपकी बोट तैर रही है वो भी तो आपका साथ दे रहा है। और यदि आपका बोट आपका साथ तैरने में दे रहा है तो कहीं ना कहीं आपके साथ में एक और चीज है जो पानी है, तो वो पानी भी तो आपका साथ दे रहा है, हवा भी आपका साथ दे रहा है। इस तरीके से एक आप चले थे, लेकिन न जाने कितने लोग आपके साथ मिलते चले गए और एक कारवां बनता चला गया। आपने न जाने कितने लोगों को एम्पावर करने की बात सोची है। जब हम दूसरों को एम्पावर करने की बात सोचते हैं, मेरा निवेदन होगा, किसी का माइक ऑन है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। मैं रिक्वेस्ट यू टू म्यूट योरसेल्फ प्लीज। नूरुल, कैन यू हेल्प मी? नूरुल? राइट 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 राइट।
सो जब हम इतने लोग एक साथ मिलते हैं तो कहा भी जाता है, एक अकेला चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए कारवां बनता गया। लाइफ एक कारवां है। आप अकेले चलते जरूर हैं, लेकिन जो अकेला चलता है वो अकेला कभी नहीं होता, उसके साथ उसके अंदर का मैं तो जरूर होता है। और वही एम्पावरमेंट है। डिस्कवरिंग हु यू आर टुडे इज द फर्स्ट स्टेप टू बी बीइंग हु यू विल बी टुमारो। आप क्या हैं, यदि आप ये आज फर्स्ट स्टेप तय करते हैं तो आप कल क्या बनेंगे ये भी आप तय कर लेते हैं। तो लाइफ इज अ जर्नी, is a journey like a boat, and that's why we say life is an endless process of self discovery. ऐसे चीज को डिस्कवर करना, ऐसे चीज को निकालना जो पहले से है लेकिन आपने उसके ऊपर एक कवर डाल दिया है, उस कवर को हटाना, उसको अनावरण करना, अपने अंदर के मैं को धूल से या उसके ऊपर ढकी हुई परत से या उसके ऊपर ढकी हुई किसी भी चीज से उसको हटाकर उसको आलोकित करना ही एम्पावरमेंट है। और वही एम्पावरमेंट हम सबको करने की जरूरत है। और यदि हम कहते हैं कि एक बुझा हुआ दीपक दूसरे दीपक को जला नहीं सकता, तो सबसे पहले जरूरत यह है कि एक हमारे अंदर के बुझे हुए दीपक को हम जला लें, और वो यदि दीपक जल जाता है तो जितने भी बुझे हुए दीपक हैं वो सब जगमगाने लगते हैं, वो सब जल जाएंगे। तो अपने अंदर के बुझे दीपक को यदि आप जला लेते हैं और उससे जो रोशनी उत्पन्न हो रही है, वही आपका सबसे बड़ा एम्पावरमेंट है। आपके अंदर यदि ग्लो है, और यदि आपके अंदर का ग्लो यदि फ्लो होता है, और वो जब फ्लो होता है तो वो न जाने कितने बुझे हुए दियों को भी जला सकता है। इसीलिए दूसरों को एम्पावर करने के पहले सबसे ज्यादा जरूरी ये बात है कि आई एम पावर, मेरे अंदर पावर है, मेरे अंदर आत्मा है, मेरे अंदर शक्ति है, मेरे अंदर सशक्तता है, मेरे अंदर अपने आप को सशक्त करने का हुनर है, मेरे अंदर वो सारी चीजें हैं जो भगवान ने मुझे दिया है। हम हमेशा कहते हैं व्हाट वी आर इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड, हम जो हैं वो भगवान की देन है। एंड व्हाट वी बिकम इज अ गिफ्ट टू गॉड, हम जो बनेंगे वो भगवान को देन होगा। यदि हम भगवान की देन हैं तो हम ऐसा इंसान बने जो कि भगवान के लिए देन हो सके, ताकि वो भी पूरे गर्व के साथ कह सके कि मैंने जिस व्यक्ति को इस धरा पर उतारा है उस व्यक्ति ने मुझे बहुत प्राउड फील करवाया है। यदि भगवान ऐसा कह रहे हैं तो मान के चलिए आप ह्यूमन बीइंग नहीं हैं, बल्कि ह्यूमन बीइंग से आप बीइंग ह्यूमन हो गए हैं। हमारी अनंत यात्रा में ह्यूमन बीइंग से बीइंग ह्यूमन होना बहुत ही आवश्यक है। और इस जहां में सबसे ज्यादा आवश्यकता इस बात की है कि भगवान ने हमें ह्यूमन बीइंग बनाया, हम भगवान को बीइंग ह्यूमन बनकर एक गिफ्ट दे सकें। और यही गिफ्ट हम सभी को देना चाहिए भगवान को, ताकि हम अपने आप को एम्पावर कर सकें। जो मैं आपसे बात कर रहा था मैं और मैं का, एक मैं मेरा माइंड है, एक मैं मेरा हार्ट है। जब तक इस हार्ट और माइंड का कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन, कोऑर्डिनेशन नहीं होता, जब तक इन दोनों में कनेक्शन नहीं होता, जब तक इन दोनों में तादात्म्य स्थापित नहीं होता, तब तक हम कहते हैं कि हमारे अंदर में एकात्मता नहीं आती। और उसी एकात्मता को बनाने की सबसे बड़ी जरूरत हमें है। और यही बनाने का प्रोसेस जो है, गेनिंग नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग योर एबिलिटीज, कैरेक्टर एंड फीलिंग इज द रियल डिस्कवरी। हम सब के अंदर इतनी ताकत, बेशुमार ताकत हमारे अंदर भगवान ने दी है, शायद हम अपने आप को समझ नहीं पाते, शायद हम अपने अंदर में झांक कर उन चीजों को देख नहीं पाए हैं कि हम में कितनी एबिलिटीज है। हमारे पास इतना स्ट्रांग कैरेक्टर है, हम बहुत सारी चीजों को फील कर सकते हैं। और इसीलिए हम हिंदी में भी कहते हैं कि जहां न पहुंचा रवि वहां पहुंचा कवि। तो कवि वहां पहुंच जाता है अपने फीलिंग्स, इमोशंस और एबिलिटीज के साथ जहां पर रवि भी नहीं पहुंच पाता। उन कल्पनाओं को लेकर वो कहां से कहां पहुंच जाता है। तो वही एक्ट और वही प्रोसेस अपने आप को जानने की है। और अपने आप को जानने के लिए अंग्रेजी के WH वर्ड्स बहुत मायने रखते हैं। हु एम आई, हाउ एम आई, व्हाट एम आई, व्हेन शुड आई स्पीक, व्हाट शुड आई डू। ये सारे प्रश्न हम यदि अपने आप से करते चले जाते हैं तो हम अपने आप को डिस्कवर ही नहीं, रीडिस्कवर कर लेते हैं। और रीडिस्कवरी ऑफ द सेल्फ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ एंटायर लाइफ। सो हमारी पूरी लाइफ उसी ओर घूमती है। जब हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं
डिस्कवर द सेल्फ की बात करते हैं, तो सेल्फ डिस्कवरी स्टार्ट्स विथ सेल्फ असेसमेंट। सबसे पहले दूसरा हमें असेस करे, हम खुद अपने आप को असेस करें कि मैं क्या हूं और मैं क्या नहीं हूं। स्वामी निसर्गानंद महाराज ने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम था व्हाट आई एम नॉट, मैं क्या नहीं हूं। आप क्या हैं इसको पता करने का सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि आप ये पता करें कि आप क्या नहीं हैं। आप बहुत सारे लिस्ट बनाते चलते हैं, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, और लास्ट में जो बचता है वो आप होते हैं। तो मैं क्या हूं ये बताने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये बात है कि मैं क्या नहीं हूं। तो मैं क्या नहीं हूं यदि मैं समझ लेता हूं तो मैं क्या हूं ये मेरे समझ में आने लग जाता है। इसलिए सेल्फ असेसमेंट करना बहुत जरूरी है, खुद का मूल्यांकन करना, स्वयं का मूल्यांकन करना। हम होते कौन है जो दूसरों का मूल्यांकन करें। जब मैंने स्वयं का मूल्यांकन ही नहीं किया है तो मैं दूसरों का मूल्यांकन कैसे कर सकता हूं। यदि मैं अपने आप को नहीं समझ पा रहा हूं तो मैं दूसरों को कैसे समझ सकता हूं। When I am unable to understand myself, then how can I understand the other self or the other person? So that's the basic issue. हम सभी को अपनी पीठ दिखाई नहीं देती, लेकिन दूसरे की पीठ हमें बहुत अच्छे से दिखाई देती है। Why to look into the back of other person when we cannot look into the back of our own? That's the basic issue which has to be understood by every individual in this planet called Earth. So that's the basic issue to evaluate ourselves. हम बिलो एवरेज से एवरेज की ओर जाएं, एवरेज से वेरी गुड की ओर जाएं, वेरी गुड से एक्सीलेंट की ओर जाएं, और एक्सीलेंट से आगे बढ़कर हम आउटस्टैंडिंग की ओर चले जाएं। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये ऑनगोइंग जर्नी है। दिस इज नॉट एट ऑल अ डेस्टिनेशन। आउटस्टैंडिंग के बाद में उस जगह पर आपको स्टैंड करने में जितनी ऊर्जा लगती है, सस्टेन करने में जितनी एनर्जी आपको लगती है, उतनी एनर्जी तो इन पायदानों में चढ़ने में नहीं लगी है। तो जिस व्यक्ति ने उस मुकाम को हासिल कर लिया, उस मुकाम पर बने रहने के लिए उसकी जो जिजीविषा है वो जितनी लगती है, वही सबसे बड़ी डिस्कवरी है हमारी। और वही जब हम डिस्कवर कर लेते हैं तो हम दोनों हाथ उठाकर कह सकते हैं कि आई एम नाउ हाउ आई फील, आई एम बीइंग हियर, आई एम माय हार्ट्स डिजायर, मैं वो हूं जो मेरा दिल चाहता है। I am not an object. I am fully alive. I am completely enough. I am connected to all. I am the one who gives love to everyone. I am the loving entity. हम सब कुछ अपने आप में ही निहित रहते हैं। इसलिए जो व्यक्ति अपने आप को समझ लेता है, अपने आप को जान लेता है, अपने आप को देख लेता है, उसे किसी दूसरी कंपनी की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो आत्म प्रसन्न होता है, आत्ममुग्ध होता है और आत्मावलोकन वो कर सकता है। तो यही सबसे बड़ी जरूरत होती है कि हम अपने आप को किस प्रकार एम्पावर करते हैं। और इसी एम्पावरमेंट में हमारे जो क्वेश्चंस हैं कि व्हाट एम आई डूइंग, मैं कर क्या रहा हूं, मैं हूं कौन, व्हाट आई वांट टू डू, मुझे करना क्या है, एम आई ऑन द राइट पाथ, क्या मैं सही रास्ते पर हूं, व्हाट डू आई लव इन माई सेल्फ, मेरे अंदर ऐसी कौन सी चीज है जिसे मैं बहुत पसंद करता हूं। ये सारे प्रश्न हम अपने आप से करते हैं, और जब इनका उत्तर हमें मिलने लगता है, अपने आप के साथ बैठकर अपने आप को देखने की अनुभूति जब हम अपने अंदर में जगा पा रहे हैं और उसका उत्तर हमें मिलता चला जा रहा है, तब जैसे संतरे के छिलके का परत दर परत खुलता है या प्याज का परत दर परत खुलता है, वैसे ही इंसान भी अपने आप अपने सामने परत दर परत अपने आप को खोलता चला जाता है। और जिस प्रकार वो खोलता चला जाता है तो वो पेरिफेरी से लेकर सेंटर तक पहुंच जाता है, और वही सेंटर जहां पर वो पहुंचता है वह उसकी आत्मा है, वह उसका सोल है। और उसी सोल को आगे बढ़ाते हैं कि मुझे जज कौन कर सकता है, सबसे अच्छा जजमेंट मेरे बारे में कौन दे सकता है, मेरे पेरेंट्स या मेरे टीचर्स, मेरे मेंटोर्स या मेरे फ्रेंड्स। हम इन्हीं के इर्द गिर्द घूमते हैं। सोसाइटी में हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे मेंटोर्स होते हैं, हमारे टीचर्स होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, और हम उन्हीं के द्वारा इवैल्यूएट किए जाते हैं, वही हमको जज करते हैं। हम स्वयं अपने आप को कभी जज नहीं कर पाए। मुझ में क्या काबिलियत है ये मुझे दूसरा बताता है, तब मुझे पता चलता है कि घनश्याम तेरे अंदर तो ये काबिलियत है, जबकि घनश्याम को स्वयं अपनी काबिलियत का एहसास नहीं होता है। तो ये एहसास कराने की जरूरत है। और एक यदि आपको एहसास स्वयं का ज्ञान नहीं है
तो बिल्कुल आप उसी सर्कस के शेर के जैसे हैं जो एक रिंग मास्टर के हंटर पे किसी भी कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है, क्योंकि वहां शेर को भी ये एहसास नहीं होता है कि उसमें कितनी शक्ति है। एक हंटर एक चाबुक के सहारे वो शेर उस रिंग मास्टर के इशारों पर नाचने लगता है। सो वो शेर जो है, जिसे हम जंगल का राजा कहते हैं, द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, इज डांसिंग मियर ऑन द व्हाट यू कॉल डायरेक्शंस ऑफ द रिंग मास्टर। सो वहां पर शेर भी जो है एक पपेट बन गया है, कठपुतली बन गया है। हम भी समाज के हाथों में, इन सारे लोगों के हाथों में कठपुतली बन गए हैं, क्योंकि हम अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हैं। जिस दिन आप अपने आप को पहचान लेंगे, आप कठपुतली बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। और यही हमारे लिए सबसे बड़ी जरूरत है कि हम कैसे अपने आप को एनालाइज करें। वो कौन सा तरीका है जिसके द्वारा हम अपना असेसमेंट कर सकें, वो कौन से स्टेप्स हैं जिनका हम फॉलो करें तो अपने आप को हम डिस्कवर कर सकते हैं, रीडिस्कवर कर सकते हैं। मैं आपके साथ 7 स्टेप्स शेयर करूंगा, और 7 स्टेप्स इसलिए हैं क्योंकि सप्तऋषि मंडल है। शादियां जब होती हैं तो सप्तपदी या 7 फेरे होते हैं। आसमान में भी जब आप इंद्रधनुष देखते हैं तो उसमें भी 7 रंग होते हैं। 7 हमारे जीवन का साथ है, इसलिए 7 है। और नैक में भी जब एक्रेडिटेशन होता है तो उसमें भी क्राइटेरिया 7 ही है। तो 7 हमारा हमेशा साथ देता है, इसलिए लोक भी साथ, सप्तलोक, यस सप्तलोक, कॉन्शियसनेस के लेवल्स से, राइट, एब्सोल्युटली। और हम जब कहते हैं कि 7 समंदर पार, हम ये नहीं कहते 6 समंदर पार, हम ये कभी नहीं कहते 5 समंदर पार या 8 समंदर पार, सब में 7 है, और यही 7 हमारा साथ देता है। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो साथ देती हैं? सबसे पहला है आस्क एंड एक्नॉलेज योर यूनिक पर्पस। अपने आप से पूछिए कि आपके इस धरा पे आने का यूनिक पर्पस क्या है, और यदि पर्पस आपको समझ में आ जाता है तो आप एक्नॉलेज भी करिए कि जिन्होंने आपकी सहायता इस दुनिया में आने में की और इस दुनिया में रहने में की और आपको यूनिक बनाने में की, उन सभी को एक्नॉलेज करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। दूसरा है हैव द करेज टू बी टोटली ऑनेस्ट। जो भी आप करें, जैसा भी करें, छोटा से छोटा या बड़े से बड़ा काम करें, पूरी तरीके से ईमानदारी के साथ करें, ऑनेस्टी के साथ करें। तीसरा, फाइंड अ फ्रेंड। इस दुनिया में एक अदद दोस्त की आपको बहुत ज्यादा जरूरत होती है। मैं आगे चल के बताऊंगा कि वो दोस्त कैसा होना चाहिए। फिर एम्ब्रेस द चेंज। हम सभी चेंज से बहुत डरते हैं। चेंज को गले लगाइए, चेंज को अपने सामने से गुजरने मत दीजिए, बल्कि चेंज को अपने अंदर से होके जाने दीजिए, ताकि वो चेंज जो आपके अंदर से होकर गुजरेगा वो आपको भी चेंज करता चला जाएगा। देन कन्वर्सेशन विथ योर 99-year-old सेल्फ। जब आप आगे चलकर 99 साल के बुजुर्ग हो जाएंगे, तब आप क्या सोचते हैं उसको आज ही आप अपने 99 साल के बुजुर्ग होने से बात करिए, एक तादाद में स्थापित करें हम। फिर सेलिब्रेट। हम यही नहीं कर पाते हैं जीवन में। हमारी इस अंधी दौड़ में हम आनंदोत्सव मनाना भूल जाते हैं, हम उत्सव मनाना भूल जाते हैं, अपने जीवन को जीना भूल जाते हैं। हमारे सामने इतनी बड़ी चुनौतियां रहती हैं कि हम आगे आगे देखते देखते जो हमारे साथ होता चला जाता है उसको हम भूलते चले जाते हैं, उसको सेलिब्रेट नहीं करते हैं। तो हमें अपने जीवन का आनंद लेना चाहिए। जो व्यक्ति जीवन का आनंद नहीं लेता वो जीवन जीता ही नहीं है, वो केवल भागता रहता है और उसे आनंद की अनुभूति ही नहीं होती है। और लास्ट है बिलीव इन गॉड। यदि आप भगवान पर विश्वास नहीं करते तो आप अपने दिल पर विश्वास करते हैं तो वो भी भगवान है। यदि आप पानी पर विश्वास करते हैं तो वो भी भगवान है, प्रकृति पर विश्वास करते हैं तो वो भी भगवान है, दूसरे पर विश्वास करते हैं तो वो भी भगवान है, नहीं तो आप अपनी सांस पर विश्वास करते हैं तो वो भी भगवान है। तो इस तरीके से हमें इन 7 जर्नी में जो पहली जर्नी है हमारी वो है आस्क एंड एक्नॉलेज योर पर्पस। आस्क योरसेल्फ व्हाट डू यू ट्रूली डिजायर टू बी, टू डू एंड टू हैव। आप एक्चुअल में होना क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? व्हाट डू यू फील कंपेल्ड टू डू। ऐसी कौन सी चीज है जो आप वाकई में तुरंत अभी करना चाहते हैं? एक्नॉलेज योरसेल्फ फॉर योर यूनिकनेस। आप जो यूनिक हैं उसके लिए अपने आप को एक्नॉलेज करिए। This will give you the courage to leap from your comfort zone. इससे आप अपने comfort zone से बाहर निकलेंगे। And you have to find your purpose. My purpose is to acknowledge the wonder of being the part of creation.
आपका पर्पस ये है कि आप एक ब्यूटीफुल क्रिएशन की एक पार्ट हैं, आप इस प्रकृति की, इस धरा के एक अंग हैं और एक अंश हैं आप। दो आई माई सेल्फ डू नॉट क्रिएट एनीथिंग, आई मेक फ्रॉम व्हाट हैज बीन क्रिएटेड। आप कुछ क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन आप इस क्रिएशन से कुछ बना तो सकते हैं। इसीलिए अपने आप से प्रश्न करिए, अपने आप को एक्नॉलेज करिए, अपना पर्पस देखिए। और हर व्यक्ति का इस जीवन में आने का एक पर्पस जरूर होता है। हमें पर्पस को खोजने की जरूरत है। पल पल आपके पास आपका पर्पस आपके सामने आना चाहिए। और जब आपको आपके जीवन का उद्देश्य पता चल जाता है तो आप उस लाइफ को बहुत ही हैप्पीली जीना प्रारंभ कर देते हैं। और जब हम आस्क एंड एक्नॉलेज की बात करते हैं तो हमारे सामने 3 प्रश्न आते हैं। पहला है व्हाट इज माय डीपेस्ट डिजायर, मेरे अंदर का डिजायर क्या है। व्हाट एम आई ट्रूली पैशनेट अबाउट, किसके बारे में मैं बहुत ज्यादा पैशनेट हूं। तीसरा है व्हाट आइडियाज आर पर्सिस्टेंट इन माय हार्ट एंड थॉट्स, मेरे हृदय में और मेरी भावनाओं में कौन सी ऐसी आइडियाज हैं जो हमेशा विद्यमान रहती हैं। तो मेरा डीपेस्ट डिजायर क्या है? मेरा डीपेस्ट डिजायर है कि this is not what I have general or passing interest in, but rather a deep yearning or aspiration to do. Here is another way to answer it. What is the thing I want most of my life? मेरे पूरे लाइफ में मैं कौन सी ऐसी चीज चाहता हूं करने को। और जो आप चाहते हैं यदि आप समझ लिए तो उसके लिए वेट मत करिए। काल करे सो आज, आज करे सो अब करे सो तुरंत। तो तुरंत उसको आप करना प्रारंभ कर दीजिए। किसी रोते हुए बच्चे को हंसाने का यदि आपके मन में विचार आया है तो जाइए किसी रोते हुए बच्चे को हंसा दीजिए। परमात्मा खुश हो जाएगा, आपकी आत्मा खुश हो जाएगी, आपको जीवन का अप्रतिम आनंद उस दिन प्राप्त हो जाएगा। रोना तो सब रोते हैं, रुलाना सब जानते हैं, लेकिन हंसाना बहुत कम लोग जानते हैं। और जो लोग जीवन में दूसरों को हंसा सकते हैं वो बड़े ब्लेस्ड लोग होते हैं। उन्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और भगवान हमेशा मुस्कुराता है। और वो जो व्यक्ति मुस्कुराता हुआ आपको दिखाई देता है वो भगवान का बहुत बड़ा अंश होता है। What I am truly passionate about, what do I really care about, what gifts and the abilities do I especially enjoy using, what is the thing I simply must do, what energizes me, what makes me forget to eat or sleep। ऐसी कौन सी चीज है दुनिया में जो मेरे से मेरा खाना दूर कर देती है, मेरी नींद दूर कर देती है और मैं उसके लिए बहुत ज्यादा पैशनेट हो जाता हूं। हाँ, आज के दिन में आप कह सकते हैं वैलेंटाइन डे है तो मैं अपनी प्रेमिका के लिए खाना भूल सकता हूं, सोना भूल सकता हूं, लेकिन मेरा मानना है आपकी प्रेमिका आपका एम है। आप क्या बनना चाहते हैं, कैसे बनना चाहते हैं, किस तरीके से आप जो बनना चाहते हैं वो आप दूसरों तक संप्रेषित कर पाएं या आप उसको ट्रांसमिट कर पाएं, वो बहुत बड़ा तत्व है। और इसलिए हमारे एक्स प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जी ने भी कहा था, एवरी इंडिविजुअल मस्ट ड्रीम व्हाइल स्लीपिंग बट द ड्रीम मस्ट नॉट लेट यू स्लीप। हर व्यक्ति को सोते समय सपना देखना चाहिए, लेकिन सपने ऐसे हों जो आपको सोने न दे। तो जो सपना आपको सोने नहीं दे रहा है वही सपना आपका अपना है, बाकी सारे सपने दूसरों के हैं। और जो सपना आपने अपने आंखों में देखा है उसी सपने को साकार करने की कोशिश करिए। और जिस दिन आप उस सपने को साकार करते हैं वह सपना आकार लेने लगता है और वही आकार जो है उस निराकार ब्रह्म का प्रतीक होता है। What ideas are persistent in my heart and thoughts? What recurring dreams do I have in my life? What ideas never leave me? ऐसे कौन से विचार हैं जो मुझसे छूटते ही नहीं हैं? What ideas, invention और innovations keep coming back to me? ऐसे कौन से विचार हैं जो बार बार मेरे पास आते हैं? What is my vision for life and for other lives? मेरा अपने लाइफ के प्रति विजन क्या है या दूसरों के लाइफ के प्रति मैं सोचता क्या हूं? बहुत जरूरी है कि हमें बीइंग ह्यूमन बनना। जब तक आप सफरिंग को फील नहीं करेंगे, जब तक आप अवसाद को फील नहीं करेंगे, तब तक आपके अंदर में वो सहानुभूति जागृत नहीं होगी। और सहानुभूति जब जागृत होती है तो वो एक बहुत बड़ा रूप लेकर परानुभूति में कन्वर्ट होना चाहिए। हमें लोगों के प्रति सिंपैथी नहीं बल्कि एम्पैथी होनी चाहिए। और जिस दिन हमारे अंदर एम्पैथी आ जाती है उस दिन हम अपने सेल्फ को पा लेते हैं। हम तीसरे में आते हैं, हैव द करेज टू बी टोटली ऑनेस्ट। हमें पूरी ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। नीचे एक कोटेशन भी है, बीइंग ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ टेक्स करेज। वंस यू आर डन दैट
you will find the courage to be honest with others. जो व्यक्ति courageous होता है, honest होता है, वह व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा courageous होता है। और ऐसा जब व्यक्ति होता है तो हम कहते हैं कि the second step for self discovering is to be honest, being honest to yourself and to everyone. When you are answering some of the questions outlined in the first point, you have to be honest to yourself. There is no gain in deceiving yourself. अपने आप को कभी धोखा न दे। जो व्यक्ति अपने आप को धोखा नहीं देता है, मान कर चलिए, विश्वास मानिए, वह व्यक्ति दुनिया में किसी भी व्यक्ति को धोखा नहीं दे सकता। What assumptions have you made about yourself and others? तो अपने आप को एक्सेप्ट करना हम सीखें। हम जैसे हैं, जो हैं, जिस प्रकार हैं, उसको एक्सेप्ट करना ही सबसे बड़ी हमारी जरूरत है। और इसी जरूरत को हम कहते हैं, फर्स्ट थिंग इज टू बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। यू कैन नेवर हैव एन इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी इफ यू हैव नॉट चेंज्ड योरसेल्फ। हमें अपने आप को बदलने की जरूरत है, हमारे अंदर करेज लाने की जरूरत है। और वो करेज जिस दिन आप लेके आते हैं, आप देखिए, आप अपने आप को बिल्कुल बदला हुआ इंसान के रूप में देखेंगे। तीसरा मैंने कहा, फाइंड अ फ्रेंड। कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला। एक ऐसा दोस्त चाहिए जो आपको प्यार करे। एक ऐसा दोस्त चाहिए जो आपके सारे गलतियों के बाद भी आपके साथ रहे। एक ऐसा दोस्त चाहिए जो आपकी सारी वीकनेसेस के बाद भी आपका हाथ न छोड़े। एक ऐसा दोस्त चाहिए जो आपकी ओर अपने हाथ को लेंड करे। जैसे अभी दीपिका ने कहा था, someone who gives his or her hand to someone is handsome. So great friends are hard to find, difficult to leave, and impossible to forget. Become an impossible friend for your friend. Become a difficult friend for your friend. Become a hard friend for your friend. तो इसीलिए a friend in need is friend indeed. और ऐसा व्यक्ति जो हमेशा आपका साथ दे, ऐसे दोस्त की आपको जरूरत है। तो द गुड थिंग अबाउट ऑनेस्टी, इट गिव्स यू द राइट फ्रेंड। यदि आप ऑनेस्ट हैं तो आपके पास बहुत ज्यादा दोस्त नहीं होंगे, बहुत कम दोस्त होंगे। और जितने कम दोस्त होंगे, वही दोस्त आपको सेल्फ डिस्कवरी आपकी करने में बहुत बड़ी मदद करते हैं। दुनिया में लाखों दोस्त रखने का कोई मतलब नहीं है। केवल आपको 4 दोस्त यदि बना लिया और 4 में भी एक अदद दोस्त आपके पास है, तो आपका जीवन तो सफल हो जाता है। और वही सारे दोस्त आपका साथ देंगे और आपके साथ न केवल आगे बढ़ेंगे, बल्कि आपको अपने आप को खोजने में भी मदद करेंगे। और यदि आप दर्पण में रोज अपने आप को देखते हैं, तो आपको आपका चेहरा दिखाई नहीं देना चाहिए। आपको आपके दर्पण में आपका दोस्त दिखना चाहिए। और जिस दिन दर्पण में आपको आपका दोस्त दिखाई दे रहा है, मान के चलिए, इन अ फ्रेंड यू फाइंड अ सेकेंड सेल्फ। एक ऐसा दोस्त बनाइए जिसमें आप अपने आप को देख सकते हैं। और वो दोस्त जब आईना देखे तो उस आईने में आप उसको दिखाई दे। और यही तादाद में स्थापित करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमें एक लंबी डिस्कवरी में जाना है, जहां पर हमें एक अदद दोस्त की जरूरत होती है। और ऐसा दोस्त हार्ड टू फाइंड है, लेकिन इम्पॉसिबल टू फाइंड नहीं है। तो ऐसे दोस्तों की तलाश में हमेशा जीवन में रहिए। और दोस्त वही अच्छा होता है जो खरा होता है, जो मुंह पर आपके बोलता है। दोस्त वही होता है जो आपको आईना दिखाता है। दोस्त वही होता है जो आपके बुरा और भला के बारे में सोचकर आपके मुंह पर वो सारी बातें बोल देता है, लेकिन आपके पीठ पीछे भी वो आपसे चीजों को छुपा नहीं पाता, आपके सामने भी छुपा नहीं पाता। जो है वो बिल्कुल क्लियर कट बोलता है। ऐसे लोगों को लोग बहुत कम पसंद करते हैं, लेकिन ऐसे दोस्त को जरूर रखिए। और जो दोस्त आपकी निंदा करता है, उसको तो और पास रखिए, क्योंकि कबीर ने भी कहा था, निंदक नियरे राखिए। ठीक, तो ऐसे दोस्तों को जो क्रिटिसाइज करते हैं आपको, उनको हमेशा साथ रखिए, क्योंकि आलोचना में ही आप आलोकित होते हैं। जब तक आपकी आलोचना नहीं होगी, आप अपने आप को आलोकित नहीं कर पाएंगे। आइंस्टीन ने भी कहा था, जब E = mc² उसने खोजा था, तो ही सेड, द क्रेडिट गोज टू माय क्रिटिक्स बिकॉज दे सेड, आइंस्टीन यू कैन नॉट डू इट एंड आई डिड इट। क्योंकि मेरे आलोचकों ने कहा, आइंस्टीन तुम ये नहीं कर सकते, और मैं उसे कर डाला। इसलिए पूरा का पूरा क्रेडिट जो है मेरे आलोचकों को जाता है। आलोचक हमेशा रखिए। फिर एम्ब्रेस द चेंज, ये आपके ऊपर है। यू ऑलवेज हैव अ चांस टू चेंज। आपके पास हमेशा एक चांस होता है कि आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं, और उस चेंज को आप आत्मसात करिए।
क्या हमने सोचा था कभी कोरोना वायरस के कारण हम में जो बदलाव आए हैं ऐसे बदलाव हमारे में आएंगे? 10 साल आगे चलकर जो बदलाव आने थे वो हमारे इन 10 महीनों में हमारे अंदर आ गए। हमने कभी नहीं सोचा था कि एक जो मोबाइल जिसको हम केवल व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर या फिर फोन कॉल के लिए या मैसेजिंग के लिए यूज करते हैं, उससे हम पढ़ाई भी करा सकते हैं। हम उसमें बहुत सारे टीचिंग मॉड्यूल्स बना सकते हैं। हम उसका यूज पठन पाठन में कर सकते हैं। ऐसा हमने कभी नहीं सोचा था। वह व्यक्ति जो मोबाइल का 5 से 10% यूज कर पा रहा था, आज उसी मोबाइल का वो व्यक्ति 50 to 60% यूज कर पा रहा है। ये ड्रास्टिक चेंज है हमारे जीवन का, और यही चेंज हमारे अंदर, हमारी प्रकृति में, हमारे कैरेक्टर में, हमारी फीलिंग में, हमारे अंदर आना चाहिए। और वो चेंज मेरे अंदर में जो है वही बाहर निकलकर रेडिएट होगा, जिससे लोग लाभान्वित होंगे। इसलिए चेंज इज कांस्टेंट। इट्स वन थिंग दैट हैपेंस एवरी डे इन आवर लाइफ। चेंज तो हर दिन हमारे साथ होता है, हर पल हमारे साथ होता है। डेयर टू ड्रीम, कभी सपने देखना मत छोड़िए। और यदि कोई कहता है सपने मत देखिए, तो और बड़े सपने देखिए। टेक बिग स्टेप्स फॉरवर्ड, बड़े से बड़े सपने देखिए। यू डोंट नीड टू नो एवरीथिंग बिफोर यू प्रोसीड, एंड यस, देयर इज नो सच थिंग एज अ मिस्टेक। आपको लगता है मिस्टेक हो गई, मिस्टेक नाम की चीज तो दुनिया में होती ही नहीं है, क्योंकि उस मिस्टेक वर्ड को ही आप देखिए, उसमें भी टेक है। जब आप मिस करते हैं और टेक करते हैं तो अगली बार आप उस टेक से लाभान्वित ही होते हैं। You are benefited with your mistakes because all your mistakes are experience. They turn into own experience. So whatever appears is there for your greater good, learning opportunity. It creates a wonderful opportunity for you. So that's why embrace the change and never ever think of committing mistakes. हमारे बहुत सारे युवा साथी केवल एक बात को लेकर डरते हैं कि मुझसे कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए। तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि उस मिस्टेक में भी टेक पर ध्यान दें। हर एक टेक, जब फिल्में बनती हैं तो टेक कहा जाता है, फिर रीटेक होता है। टेक रीटेक, टेक रीटेक, हमारा जीवन पूरा का पूरा उसी टेक रीटेक एक्शन पर ही निर्भर है, और हमें उसी एक्शन को करना है, उसी टेक को करना है, उसी से रीटेक करना है, ताकि हम बेहतर से बेहतर इंसान बन सकें। डोंट रेजिस्ट चेंज, एम्ब्रेस इट। चेंज को कभी भी रेजिस्ट मत करिए, उससे अपने आप को दूर मत करिए, बल्कि उस चेंज में अपने आप को डाल दीजिए, ढाल लीजिए अपने आप को। और यदि आप अपने आप को उस चेंज में ढाल लेते हैं तो आप ये बनते हैं। एम्ब्रेस द चेंज टू गेट अहेड। मेटामॉर्फोसिस ऑफ अ लार्वा इनटू अ बटरफ्लाई। वो लार्वा किस तरीके से बटरफ्लाई बनकर नीले आसमान में, नीलाकाश में अपने पंखों को फैलाकर उड़ती है हमारी बटरफ्लाई, वैसे ही हमें भी उस लार्वा से बटरफ्लाई बनना है। हमारी पूरी इस जीवन की अनंत यात्रा जो है हमारी अपनी लार्वा से लेकर बटरफ्लाई बनने तक है, और वही बटरफ्लाई बनने की हमारी यात्रा जो है वो हमारा चेंज है, और वही हमारा पैराडाइम शिफ्ट है, जिसके लिए हम इस धरती पर, इस धरा पर लाए गए हैं। उस मकसद को हमें पूरा करने की जरूरत है। और कन्वर्सेशन विथ योर ओल्ड सेल्फ, ये फोटोग्राफ आपको दिखाई दे रहा होगा। एक छोटा सा कप बैठा है और वो देखिए उसको क्या दिखाई दे रहा है, वो अपने आगे के फ्यूचर के साथ वार्तालाप कर रहा है, बात कर रहा है, और उसे उस परछाई में भी अपनी बुजुर्गियत नजर आ रही है। जब व्यक्ति अपने बुजुर्गियत के साथ बात करता है तो कन्वर्स टू गो इन रिवर्स। आप कन्वर्स करिए और अपने रिवर्स में जाइए, और आप क्या पाएंगे? आप वो सारे क्वेश्चन अपने बुजुर्ग से पूछिए कि आप क्या करना चाहते हैं। व्हाट थिंग्स कुड आई डू और एक्सपीरियंस व्हाट वुड हैव द मोस्ट पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन माय लाइफ। व्हाट कुड आई हैव डन बेटर इफ आई वर यंगर। मैं यदि यंग होता तो मैं क्या बेहतर कर सकता था, ऐसा आप अभी से पूछ लीजिए। आपको जो उत्तर मिलता है उस उत्तर का सल्यूशन खोज लीजिए और उसको तुरंत कर डालिए। जब तक हम अपने फ्यूचर के साथ कन्वर्सेशन नहीं करेंगे, तब तक हम उस फ्यूचर में जो काम हम आगे जाकर सोचेंगे वो आज हम कर पाएंगे। इसलिए अपने ओल्ड सेल्फ के साथ हमेशा कम्युनिकेट करिए। अपने जो बुजुर्ग हैं उनसे हमेशा तादात्म्य स्थापित करिए, उनके साथ बैठिए, अपने बुजुर्गों के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने दादा दादी के साथ समय व्यतीत करिए। वो जो नहीं कर पाए हैं उनको देखिए कि क्या वो चीजें आपके लिए उपयुक्त हैं करने के लिए, और लगता है कि हाँ आप इसे कर सकते हैं, तो उन्हें भी आप अंजाम देने की कोशिश जरूर करिए। सेलिब्रेट एंड एलैबोरेट द सेल्फ।
सेलिब्रेट करिए, आप आनंद के मौके मत खोजिए, हर क्षण आनंद है। यदि दुख में भी आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, आनंद में भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वही सेलिब्रेशन है। आप सुख के पलों को मत खोजिए, बल्कि हर पल में सुख की अनुभूति जरूर करिए। और यही सुख की अनुभूति यदि हम कर पाते हैं, तो आपके लिए कोई ऐसा मौका नहीं है जहां पर आप एंजॉय नहीं कर सकते, रिजॉइस नहीं कर सकते। हम मौके खोजते हैं पार्टियां देने के लिए, हम मौके खोजते हैं आनंदोत्सव मनाने के लिए। हर दिन आनंद है, हर पल आनंद है, हर क्षण आनंद है, हर व्यक्ति आनंद है, हर चीज आनंद है, और आनंद ही परमानंद है। यदि आप ऐसा मान लेते हैं, तो आप अपने आप को मान के चलिए, आज ही मान के चलिए कि आप ऐसा कोई काम करेंगे जिससे आपको स्वयं को आनंद की अनुभूति होगी। और वही आनंद की अनुभूति यदि आपको किसी को आइसक्रीम खिलाने से मिल रही है, तो उसे आइसक्रीम खिला दीजिए। किसी बच्चे को 2 रोटी देने से मिलती है, तो उसको 2 रोटी दे दीजिए। यदि किसी बच्चे से आपको लगता है कि उसके साथ बैठकर, जमीन पर बैठकर यदि आपको कंचे खेलने में आनंद आता है, तो वो भी काम कर लीजिए। जो आपको आनंद देता है वो काम करिए। और इसीलिए आनंद जो है वो बच्चों तक ही सीमित होकर रहा गया है, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, बहुत सारी संभावनाएं, बहुत सारी आशाएं, बहुत सारी अपेक्षाएं, बहुत सारी आकांक्षाएं दूसरों की हमारे अंदर आ जाती है, और हम अपने आंखों से अपने सपने देखने को छोड़कर दूसरों के सपने अपनी आंखों से देखते हैं। हमारे माता पिता, हमारी सोसाइटी, हमारे टीचर्स, हमारे मेंटोर्स, उनके जो सपने साकार नहीं हुए थे उसे हमारी आंखों में डाल देते हैं, और हम उन आंखों से उनके सपनों को साकार करने में लग जाते हैं। मेरा जीवन का क्या होगा? मेरे अपने सपनों का क्या होगा? मैंने जो सपने अपने लिए सजाए थे उनका क्या होगा? क्या मैं इस दुनिया में दूसरों के सपने साकार करने के लिए हूं, या अपने सपने को आकार देने के लिए हूं? यह एहसास भी हमें करना जरूरी है। इसलिए सेलिब्रेट एंड एलैबोरेट द सेल्फ। अपने आप को समझाइए, अपने अंदर झांकिए। आपका एक वृहद मकसद है इस दुनिया में, उस वृहद मकसद को समझना है। सेलिब्रेट सेल्फ, वेलनेस इवेंट्स एंड एकेडमी, देन गॉड इज लाइफ्स कॉर्ड। भगवान जो है वो आपका लाइफ का डोर है। यू नीड नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ वेयर यू आर गोइंग व्हेन यू नो गॉड इज गोइंग विथ यू। जब आप अकेले चल रहे होते हैं तो आप अकेले नहीं होते। आप अकेले इसलिए नहीं होते क्योंकि भगवान आपके साथ है। और कहा भी जाता है, जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यार। तो जब खुदा आपके पास है तो फिर आपको डर किस बात का है? इस दुनिया में तो लोग आपका साथ छोड़ देंगे, लेकिन खुदा जो है वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो आपको दुनिया में लाया है। वो आपको दुनिया से लेके भी जाएगा तो आपका हाथ पकड़ के ले जाएगा। तो वो खुदा तो हमेशा आपके पास है। और आपके सामने जब मुश्किलें बहुत बड़ी खड़ी हो जाती हैं, तो उन मुश्किलों से कहिए, ऐ मुश्किल, तू क्या मुश्किल है? जब मेरे साथ मेरा खुदा खड़ा है तो ये मुश्किल भी गौण हो जाती है। हर मुश्किल आसान बन जाती है जब खुदा आपके पास आ जाता है। इसलिए द वन थिंग वी कैन नॉट डू विदाउट on our journey is the self-discovery is God. Knowing God and having a relationship with Him helps us to understand who we are. And no one is a mistake. God has specific purpose and plan for every individual. God has given unto every man a talent and potential according to his or her ability. Your ability to discover them and to put them in proper use gives you the fulfillment of life. अपने आप को टटोलिए, अपने आप को अच्छे से स्क्वीज करिए, निचोड़िए, और उस निचोड़ से जो निकलता है वही आप होंगे। और इसीलिए he shines light to the dark areas and explains things that we cannot understand. वो अंधेरे में भी उजाले की किरण दिखाता है और हमें परिचित कराता है कि हम हैं कौन। इसीलिए हम जब कहते हैं कि हमें क्या बनना है, क्या बनना चाहिए, तब हमारे सेल्फ डिस्कवरी में बहुत सारे ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। हमें अपनी मेंटल और इमोशनल ब्लॉकेज को हटाना है। वो साउंड हीलिंग से हो सकता है, वो सिंगिंग बाउल से हो सकता है, वो क्रिस्टल सिंगिंग बाउल से हो सकता है। और हमारे अंदर ऐसे कौन से ब्लॉकेजेस हैं जो हमें रोकती हैं हमारी सेल्फ डिस्कवरी से? तो हमारे जो ब्लॉकेजेस हैं वो ब्लॉकेज हमारे ये हैं, फियर ऑफ फाइंडिंग डेमन्स। जब हम अपने आप को अंदर में डिस्कवर करते हैं, जैसे समुद्र मंथन होता है, समुद्र मंथन में विष भी निकला था और समुद्र मंथन में अमृत भी निकला था। वैसे ही जब हमारा मंथन हम स्वयं करेंगे, तो हमारे मंथन जब हम करेंगे तो हमारे अंदर से डेमन्स भी निकलेंगे। और वो डेमन्स जो हैं उनको हमें कंट्रोल करना है। लैक ऑफ सेल्फ लव, हम अपने आप से कभी प्यार नहीं करते, हम दूसरों से प्यार करने चले।
स्टिफल योर क्रिएटिविटी एंड ड्रीम्स, हम अपने ड्रीम्स और क्रिएटिविटी को सफोकेट करते हैं, उन्हें बाहर निकलने का मौका ही नहीं देते हैं, उन्हें हम पिंजड़े में कैद करके रखे हैं, आजाद पंछी के रूप में उन्हें नीलाकाश में हम उड़ने ही नहीं देते हैं। और हमारे चारों तरफ इतनी ज्यादा आवाज है, नॉइस है, कि हम अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं। इसलिए अपने अंदर के उस डेमन को पहचानने की जरूरत है। आपके अंदर का डेमन निकल रहा है तो आप अपना सेल्फ डिस्कवरी नहीं कर रहे हैं, आप ये सोच के नहीं कर रहे हैं कि मेरे अंदर का डेमन निकलेगा तो शायद लोग मुझे पसंद न करें। यू आर नॉट वेरी लाइकेबल पर्सन, आपको ऐसा लगने लगेगा कि आप अपने अंदर की चीजों को नहीं निकाल पा रहे हैं। अपने अंदर में एक माइक्रोस्कोप को फिट करके देखिए कि आपके अंदर के डेमन्स जो हैं वो आप बाहर निकाल सकें। और जिस दिन आपके अंदर के डेमन्स आपसे बाहर निकल जाते हैं तो आप देखिएगा उस डार्क प्लेस में एक लाइट आती है, और वो जो लाइट है दूसरों को भी इल्यूमिनेट करती है। बस लोगों को माफ करते जाइए और आगे बढ़ते चले जाइए, और कोई भी बोझ या गिल्ट अपने दिमाग पे, अपने दिल पे मत रखिए। जितना वो बोझ गिल्ट का आपके दिमाग और दिल में रहेगा उतने आप भारी होते जाएंगे, उतना ही आप सिंक होते चले जाएंगे। और इन सारे चीजों को हटाकर लेट इट गो, जाने दीजिए और आगे बढ़ते जाइए। आप उतने ही हल्के होते जाएंगे और ऊपर की ओर एलिवेट होते चले जाएंगे। द डेमन्स विद इन अस आर फॉर बिगर देन द डेमन्स आउटसाइड। बाहरी के जो डेमन्स हैं उनसे ज्यादा बड़े डेमन्स तो हमारे अंदर हैं। तो अपने अंदर के उस दैत्य को, उस राक्षस को बाहर निकालने की जरूरत है, और वही हमारी सबसे बड़ी ब्लॉकेज है सेल्फ डिस्कवरी का। और दूसरा जो ब्लॉकेज है वो है लैक ऑफ सेल्फ लव। वैलेंटाइन डे में हम कहते हैं आई लव यू अ लॉट, आई रियली मीन इट। वैलेंटाइन डे इज अ डे फॉर लव, बट एवरी डे इज अ लव डे फॉर यू। यू हैव टू से आई लव मी। यदि कोई व्यक्ति अपने आप से जितना प्यार करता है उतना ही प्यार वो दूसरों से कर पाता है। वह व्यक्ति कभी दूसरों से प्यार नहीं कर पाएगा जो अपने आप से प्यार नहीं करता है। इसलिए आत्ममुग्ध होना सीखिए। अपने अंदर की आत्मा के साथ आप अपने को तादाद में स्थापित करके अपने अंदर उस सुखद अनुभूति जो प्यार की है उसको अपने अंदर लगाइए, और आपको लगेगा कि आप एक बेहतरीन इंसान से आज पहली बार अपने जीवन में मिल पाए हैं। और यही है हमारी सबसे बड़ी नीड कि हम अपने आप को अंडरस्टैंड करें और अपने आप से सबसे पहले प्यार करें। सेल्फ लव मीन्स एक्सेप्टिंग योर स्ट्रेंथ, योर वीकनेस एंड एवरीथिंग इन बिटवीन। सेल्फ लव का मतलब होता है आपके अंदर जो कमजोरी है उसको भी आप पसंद करते हैं, और आपके अंदर जो ताकत है उसको भी आप पसंद करते हैं। यही हमारा सेल्फ लव है। तीसरा है स्टिफल योर क्रिएटिविटी एंड ड्रीम्स। आप अपने ड्रीम्स को कभी सफोकेट मत करिए, अपने क्रिएटिविटी को कभी सफोकेट मत करिए। जिस दिन आप उन चीजों को सफोकेट करते हैं वो नेचुरल नहीं होती हैं। इसीलिए आपके जीवन का सबसे बड़ा कंक्लूजन ये है कि जो आप सपने देख रहे हैं, बड़े से बड़े सपने देखिए, उसको अपना उद्देश्य बनाइए, और जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते चले जाएंगे आपकी ड्रीम्स बहुत कम होती चली जाती हैं। इसलिए ड्रीम करना कभी मत छोड़िए। कैन यू रिमेंबर हु यू वर बिफोर द वर्ल्ड टोल्ड यू हु यू शुड बी? हम वो बनना चाहते हैं जो हमें समाज बनाना चाहता है, लेकिन हम वो बने जो हम स्वयं बनना चाहते हैं। और वही स्वयं जो है उसका आप में अहम भी नहीं होना चाहिए। इस बात का भी हमें ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। हमारे चारों ओर बहुत ज्यादा नॉइस है, बहुत ज्यादा शोर है, और हिंदी में एक कहावत भी है, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर आता है। और हम लोग आज शहर छोड़ के जंगल की ओर जा रहे हैं, क्योंकि कोलाहल है। कोलाहल बाहर नहीं है, कोलाहल आपके अंदर है, कोलाहल हमारे भीतर है, नॉइस हमारे भीतर है। हम कान जरूर बंद कर लेंगे, बाहर की आवाज नहीं आएगी, लेकिन अंदर में भी तो कोलाहल है। उसके लिए कौन सा कान बंद करेंगे आप? तो बेहतर है अपने अंदर के कोलाहल को आप नियंत्रण में रखें। I withdraw from people and places from time to time. I need space from a world that's filled with millions of mouths that talk too much but never have anything to say. बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे आसपास जो बहुत बोलते हैं, लेकिन उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं रहता। तो जो कहना है उसमें बोलने की जरूरत नहीं होती है। जो कहनी है वो दिल की बात दिल अपने आप समझ लेता है, उसे बोलने की जरूरत नहीं होती, उसे लैंग्वेज की जरूरत नहीं होती। वो केवल भावनाओं से समझी जा सकती है, साइन लैंग्वेज से समझी जा सकती है। इसलिए देयर इज सो मच नॉइस एंड स्ट्रेस इन योर लाइफ दैट देयर इज हार्डली एनी टाइम फॉर सेल्फ डिस्कवरी।
और इसीलिए अपने अंदर में एक इस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट करिए जहां पर आपकी सारी नेगेटिविटीज को आप पहचानें और उन्हीं नेगेटिव एलिमेंट को आप अपने पॉजिटिव एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकें. दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज फॉर एन इंडिविजुअल टू डिस्कवर एंड रीडिस्कवर हिमसेल्फ. एंड दैट्स व्हाई बेनिफिट ऑफ सेल्फ डिस्कवरी क्या होता है? इट इंक्रीजेस द एबिलिटी टू फोकस अटेंशन, इट इंक्रीजेस द एबिलिटी टू बी present in the moment, it increases self-awareness, it increases the skill and ability, it increases the ability to become aware of stress, and then it also, what we have to do is we have to meditate and radiate energy. जब आप मेडिटेट करते हैं तो आपके अंदर में बहुत सारी ऊर्जा निकलती है और वही ऊर्जा दूसरों तक भी रेडिएट होनी चाहिए. वो यदि हम कर पाते हैं तो इंक्रीज इन द एबिलिटी टू मैनेज वंस बिलीफ सिस्टम. Self-discovery increases the life force, vigor, energy, greater mental clarity आती है, increase the ability to become more fully expressed and greater ability to succeed in anything that you do in your life. और इसीलिए awareness जब आपका होने लगता है तो आपका knowledge gain होता है. जब knowledge gain होता है तो आपका development होता है. And once you develop, you attain the mastery. So let us attain the mastery of ourselves. हम अपना खुद का मास्टरी को अटेंड करें और उस तरीके से यदि हम कर पाते हैं तो हमारा एम्पावरमेंट जो है वो पॉजिटिव होता है, चैलेंजिंग होता है, ग्रोथ की ओर आगे ले जाता है, लर्निंग की ओर ले जाता है, सेल्फ इमेज की ओर ले जाता है. और जब हम इन सारे चीजों को जानते हैं तो हमें जानना अपने आप को है. जो मैंने शुरू में कहा था, नो दाई सेल्फ. हमें अपने आप को जानने की सबसे बड़ी आवश्यकता है और इस दुनिया में यदि हम अपने आप को जानते हैं तो मानकर चलिए आप दूसरों को बहुत अच्छे से जान सकते हैं. हम सभी हमेशा ये कहते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता लेकिन ये व्यक्ति ये काम कर सकता है. हम अपने आप को क्यों अंडर एस्टिमेट करते हैं? जिस दिन हम अपने आप को जान जाएंगे उस दिन हम अपने आप को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे और वही हमारी जीवन की सबसे बड़ी सेल्फ डिस्कवरी होगी. और वही सेल्फ डिस्कवरी हमें करने की जरूरत है. आपने अपना अमूल्य समय मुझे दिया, इसके लिए आप सभी के प्रति धन्यवाद के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much, sir. Sir, thank you. Thank you very much. I would like Most to add one more thing here. Yes, ma'am. When you told know thyself, Right. I want to tell the students because they are very young, they would not understand the meaning of know thyself. Here they will superficially know about themselves, but when they will go through it, they will be able to connect themselves to God also, to spirituality, and when the spirituality comes, the person becomes perfect. That I wanted to add. Thank you, ma'am. Thanks a lot. Sir, I also want to speak for 1 or 2 minutes. First of all, I congratulate and thank Dr. Ghanshyam for sharing his first-hand experience and knowledge. As if it is coming, it is coming from horse's mouth. It is not a bookish knowledge. I have known him for the past so many years. What he is saying or telling us, he has actually practiced and realized. So it is his self-discovery and realization. And truly, we are thankful that he has made us companion in his journey. Self-empowerment is taking control of your life. And he has shown us how it can be done by being aware of ourselves, by loving ourselves. आज ही जैसे वैलेंटाइन डे का भी सर ने एग्जाम्पल दिया, आज एक अच्छा पोस्टर आया है, बी योर ओन वैलेंटाइन, लव योर सेल्फ. वही सर ने बहुत अच्छे से समझाया. सर का पूरे लेक्चर में it was very enlivened by use of images, slides, examples and illustrations and his own experiences. एंड जब आप सेल्फ एनालिसिस करते हैं तो एक स्वॉक एनालिसिस भी हो ही जाती है, which leads to our self awareness, and then only we'll become master of our own life. If we know our strengths and weaknesses. Socrates भी यही सिखाना चाहता था. एंड कल ही एक गीता का सेशन अटेंड कर रहे थे
उसमें जो सर ने बोला वही लॉर्ड कृष्णा बोले कि आपको हर एक्शन में, थॉट में यू हैव टू मैनिफेस्ट योर डिविनिटी. So for that you will have to realize that the self is within you, and that self, जैसे सर ने बोला मेरे साथ एक अंदर एक दूसरा सेल्फ, मतलब एक और है मेरे साथ, तो बिगर आई एंड स्मॉल आई आप बोल सकते हैं, इंडिविजुअल आई एंड बड़े. और सर ने ये भी बताया कि कैसे एक दोस्त जो है 7 स्टेप्स में बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल दिया, कैसे एक दोस्त वही है जो आपको सेल्फ रिवील करे. तो ये भी जब हम पीएचडी कर रहे थे तो हमने फाइंड आउट किया फ्रॉम उपनिषद्स एंड ऑल कि एक व्हाई डज अ friend loves his friend or husband loves his wife or not, because the moment you find yourself reflected in him, so there is nothing like I love you. जब real stage में love पहुंचता है तो it is I love I. तो दो बड़े I एक दूसरे को पहचान जाते हैं. वो भी सर ने बहुत अच्छे ल्यूसिड और बच्चों को समझने वाले स्टाइल में बताया, और कैसे लाइफ इज एन एंडलेस जर्नी towards something, and we should realize first of all, as I said earlier also, कि we have a self, and that self is a part of the bigger one. आत्मा जो है वो परमात्मा का प्रकार है, जैसे जुनेजा मैडम ने भी कहा. And once we realize this, तो जैसे अपने पेरेंट्स रहते हैं, अपन को लगता है इस फैमिली को बिलोंग करते हैं इसलिए हमें ऐसे ही आचरण करना चाहिए, जिससे तो once we realize we are part of God, then we will manifest divinity in each and every action automatically. So once again I thank. फिर सर ने ये भी बताया था कि कैसे लाफ्टर और सेल्फ केयर जो है गिव्स हैप्पीनेस के लिए एक रिवॉर्डिंग केमिकल है डोपामाइन, एंड दैट अराइजेस, और आपको खुशी देता है जब आप सेल्फ केयर एक्टिविटीज करते हैं या कंप्लीट करते हैं कोई टास्क को, या you celebrate your little wins. So these are my takeaways of Ghanshyam sir's talk today, and I'm so happy and I congratulate him. Thank you, sir. Thank you very much, ma'am. Indeed, it's a pleasure listening to you, and thoughts which are coming from you are real a takeaway for me too. Deepika, you are muted. Deepika, you are muted. Even no questions, even comments are most welcome. Yeah. First of all, I would like to say thank you, ma'am. I would have to introduce you, and now I am introducing you. She is the convener of our event, and she is the professor and head of the department of postgraduate and research studies in English, Government J. Yoganandan, Chhattisgarh College, Raipur. So thank you very much, ma'am, for your precious perceptions and advice, and you have summarized very nicely this lecture. And if anybody have any I was just question attending as a student or only. comment. It's a pleasure. Thank you. No, ma'am, you are yeah. Okay, ma'am. Thank you. Anybody have any comments? They can share their comments or questions. डॉक्टर शर्मा सर हैं, वो बहुत अच्छे ऑब्जर्वेशंस हैं सर के. सर बोलना चाहेंगे शर्मा सर? चंद्रशेखर सर, शर्मा सर. Yes, madam. As usual, I believe I'm sorry whether I am audible or not, because it normally happens that I am not audible enough. So I have typed my queries in the chat box. Oh, the sound is very low. Yeah, it's slow. Maybe that's the biggest problem. That's why I have written something in the chat box. First and the foremost thing, those who are attending the students, I would say that these are whatever sir has. Sharma sir, I read your query. It's saying, I am seeing that in my personality, a sense of fear and hesitation is seeping in. Why and how can I overcome?
right? The personality, as far as fear and hesitation is concerned, fear and hesitation comes when we actually underestimate ourselves or overestimate ourselves, right? And we have to estimate ourselves, not even to underestimate, not even to overestimate. The basic thing is the hesitation and the fear is because if people are expecting more than what we have, then the fear comes. And the second fear, it comes when we do feel that we are not able to do it, then the fear comes. But at the same time, we have to understand one thing: whatever I can do, I must do the best. And that stress must not be there. But at the same time, we must enjoy what we are doing. If you feel a kind of an enjoyment in your doings, then there will be no fear at all. There will be no hesitation at all. What I always do is, the very first day, I was telling to Deepika, the very first day when somebody asked me to speak something when I was studying in class 8, I went there for the extempore speech. I took the slip and one topic was given. I said, Honorable President and all those things, but I couldn't speak a single word about the topic. For 7 minutes, I stood absolutely silent. The warning bell was there and they just used the warning bell. And after that, there was 1 minute time. I used that 1 minute also and I stood there, but I never went, right? All the people, they say, Ghanshyam, kuch to bol, bol lakhan, that kind of an imitation was there, but I couldn't speak at that moment of time. And that's the first day of my life. Since then, I haven't looked back. But on that day, I learned one lesson, that I can stand there still without even using my mouth for 10 minutes. I can stand. And that was the greatest ability of mine. And that's the greatest ability of an individual. If an individual can stand for 10 minutes without uttering a word, believe me, sir, the person can speak at length when the days will come. So that's gearing up the energy, gearing up the enthusiasm, gearing up the confidence. And that's the thing which every individual has to analyze. And as far as you are concerned, fear will tear in front of you, my dear friend. Fear will have no place in front of you. And hesitation will become the aspiration of yours. So you are having ample of energy, enthusiasm, spirituality in you. And the spirituality is the greatest ability of yours. I would like to add one more thing, sir, that I learned from my father. My father always used to inspire me to speak before others. And at that time, whenever I prepared for any elocution or debate competition or any competition, because I was very much interested in participating in such extracurricular activities, and I used to participate the programs organized by clubs also. And at that time, my father always used to say, Anita, you have to speak, and you think that the others don't know anything about that topic. So when you will think like that, you will face the audience without any fear, and you will always win. And always I won prizes whenever I spoke extemporally as well as elocution, whenever I participated in essay competition. So what we have to do means, even though when we are very grown up, we have many fears when we work upon anything. But at that time, we should think that we are human, so R is human. Okay, so that we should accept, and we should accept the challenges. And once we cross those challenges, means successfully, then confidence comes in us, and we go on moving forward. That is all. Very true. अनीता ने भी बड़ों की बातें, जैसे सर ने कहा, बड़ों की बातों पे ध्यान दिया. एल्डर्स आर रियली देयर टू गाइड अस. सर, आपके इतने थॉट प्रोवोकिंग रहते हैं ये टॉक्स की. I was reminded when you were talking about that we are all unique and we have come here, we should find our purpose. Milton का on having arrived at the age of 23 याद आ गया.
ऐसा right, right. पढ़ते हैं तो अपने को क्वेश्चन पूछना चाहिए कि हम क्यों आए हैं, क्या हम अपनी लाइफ वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं। सर ने देखो, right. सर ने जहां भी रहे अपनी डेस्टिनी समझ के अपने जितना कर सकते थे सर ने बल्कि उससे ज्यादा किया। Do more than what you are expected. That was my father's advice, and I see that he is a living epitome of that. वैसे ही जब सर बोल रहे थे कि हर को एंजॉय करो लाइफ को, तो अभी हम सरोजिनी नायडू की एक्सटेसी पढ़ा रहे थे, उसमें भी यही है कि दुख के तो बहुत चीजें हैं, आज आप स्प्रिंग आई है तो खुश हो लीजिए। थैंक यू सर। Right. थैंक यू। Thank you very much, ma'am. Thanks a lot. There is a flow of comment also in the chat box. Deepika ma'am, you may read some of them for Good afternoon, sir. yeah, Nagma. Yes, good afternoon. Sorry for interrupting, Nurul sir. No interruption at all. Okay. Sir, thank you so much for sharing not only your thoughts, but it is a treasure which you share with us. Sir, I have a question. Yes, You said please. that be yourself and love yourself. Sir, I really Right. love myself so much, but sometimes what happened that the things which I want, which is for my love, for the means what I want to say, which is Tell me. You can express in Hindi also. sir, what happened that sometimes my has a fight with the choice of my family, and my family is very important for me, it is obvious. And sir, on that time what happened that they took decision for me that yeah, this is beneficial for her, and I think that yes, it is beneficial for me and I am okay with that, but I am not happy with that. I want to do something else, I want something else, Right. but they thought that it is more benefited for her like that. On that time, what should we do? Okay. Nagma, I have answered your question time and again because you have asked this question before also, and when you spoke to me, you asked this question at the time also, I have answered it, right? बार बार आपके दिमाग में और आपके मन में यही प्रश्न आता है कि मैं माता पिता के या अपने परिवार वालों से दूर कैसे हो सकती हूँ जब मैं अपनी आकांक्षाओं को, अपनी अपेक्षाओं को, अपनी इच्छाओं को पूरी करती हूँ तो शायद मैं उनसे अलग हो जाती हूँ। आप किसी से अलग नहीं होते हैं, इस दुनिया में आपका अलगाववाद है ही नहीं है। सबसे पहले तो समझना यह है कि मैं अपने आप को जब मैं समझ जाता हूँ, अपने पर्पस पे मैं जब अड़िग हो जाता हूँ और जब मैं अपने पर्पस को समझ लेता हूँ तो दूसरों को भी उस पर्पस को समझाने में मुझे आसानी हो जाती है, क्लैरिटी आ जाती है, उसमें कन्विक्शन आ जाता है, उसमें हमारी एबिलिटी बढ़ जाती है। तो वो जो डिस्कवरी अपने आप की है, जो कन्विक्शन की है, क्लैरिटी की है और एबिलिटी की है और अपने पर्पस को समझने की है, वो जिस दिन आ जाती है तो वो ऐसा माहौल, ऐसा एनवायरनमेंट खुद ही बना देती है कि आप अपने यहाँ के लोगों को भी समझा सकते हैं और आपके यहाँ के लोग आपके उस परिदृश्य में आपको समझना भी बहुत आसानी से वो समझ जाएंगे। और वो परिदृश्य बनाने में समय जरूर लग सकता है। आपको लगता है कि मेरे माता पिताजी आपकी बातों को अभी तुरंत नहीं समझ पाए, लेकिन हो सकता है कि कभी ना कभी समझें। और आप ये नहीं कह सकते कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, मैन प्रपोजेस गॉड पोस्टपोन करता है, भगवान उसको पोस्टपोन करता है, उसी समय उसका फल नहीं देता। जैसे लियो टॉल्स्टॉय ने भी कहा था कि गॉड सीज द ट्रूथ बट वेट्स, भगवान ट्रुथ को देखता है लेकिन वेट करता है कि आपको उसको कब देना है, जो जब देने की बारी आती है तब देता है। हमने क्लास 10th में एक पोएम पढ़ा था उपागुप्ता, राइट? उपागुप्ता से जब वो डांसर ने कहा कि आप इस जमीन पे लेटे हैं, आप मेरे घर आइए और चलिए मेरे घर में आप रुकिए, यहाँ कहाँ जमीन पर लेटे हुए हैं, तो उपगुप्त ने कहा कि जब सही समय आएगा तो मैं तुम्हारे घर अवश्य आऊंगा। और वही उपगुप्त बहुत सालों बाद जब लौटते हैं तो देखते हैं कि नगर के किनारे वो
पड़ी हुई है और उसके शरीर में इतने घाव हो गए हैं, उससे बदबू आ रही है, उससे पीप निकल रही है, कोई उसके पास जाना नहीं चाहता है, तो उपगुप्त उसके पास बैठते हैं, उनको याद आ जाता है कि ये तो वही महिला है, उसके पूरे शरीर में अपना हाथ फेरते हैं, उसके सारे दर्द, उसके सारे जो घाव रहते हैं वो ठीक हो जाते हैं, और वो महिला पूछती है कि हे महानुभाव, मुझ पर इतने दया करने वाले आप कौन हैं? तो वो कहते हैं, मैं उपगुप्त हूं, जब आपको मेरी जरूरत थी तब मैं आपके पास हूं। तो हो सकता है गार्ड उस समय आपको नहीं दे रहा है, लेकिन वो पोस्टपोन जरूर करता है, और गाहे बगाहे कभी ना कभी आपको ऐसे मौके जरूर मिलते हैं जब आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके। हो सकता है अभी वो मौका नहीं हो सकता है वो मैच्योरिटी अभी हम में नहीं आई हो, लेकिन डिस्कवरी में हम अपने आप को कभी रोके नहीं। एवरी डे इज अ डे ऑफ योर ओन डिस्कवरी। तो ऐसा कभी मत सोचिए कि वो गलत हैं या आप गलत हैं या आप अपने सपनों को साकार नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आगे चलकर कोई ना कोई ऐसा वक्त जरूर आएगा जब आपके सपने साकार होंगे और वो आकार भी लेंगे। इसलिए हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, बल्कि दुगने उत्साह से काम करना चाहिए। Yes, sir. Thank you, sir. I'm doing. Right. Very good. Yes, Deepika ma'am. Yes, sir. Should we conclude it, sir? Yes. If there is no other comment, then we can. Yeah. If anybody has any comment. I think Dr. Indrani is there. If she can. Dr. Indrani? 2 or 3 students from Dhamtari has also joined. PG students. Okay. Chaya Very good. Goswami, Kusum Lata, 1-2 और हैं. आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं. I am happy that they are joining our programs. Lalita Soundarajan has joined. Ma'am, are you there? Hello? Lalita Soundarajan is from Daman. Yes, sir. Yes, sir. Yes, ma'am. We would love to listen to you. Wonderful session. Yeah. It was a wonderful session. Actually, I am an assistant professor of English and I had presented a research paper, a comparative analysis of Aurobindo and Vivekananda. Wonderful. And I am basically a soft skills trainer also, Right. apart from being an English professor. So I was able to recapitulate and take up all the inputs of what is more needed for my teaching and training. It was really good because the inputs of what you were giving was really wonderful. When you spoke about the soft skills, about the attitude, I mean, it mainly focused on the attitudinal development and the character building and everything, right? And how we have to develop our attitude in the professional skills development. All these areas and arenas were very good, and I really enjoyed the session. So, thank you very much, ma'am. And we would love to have you as a soft skills trainer on our platform for the benefit of the faculty and the students as well. And it's even my pleasure, sir. Recently, yes, sir. I'll just post my mail ID also. Yeah, ma'am, recently, please. in my college, we just completed an AICT sponsored faculty development program, which I coordinated. Right, ma'am. Right. So Thank you. I organized an AICT, and I've attended more than 200 conferences, published more than 150 journal papers, inclusive Scopus Index. I'm a postgraduate in English, linguistics, and translation studies, waiting for my PhD viva. Oh, wonderful, ma'am. Nice to connect with you. Yeah, I'm a BEC trainer, IELTS trainer, and a TOEFL trainer also, sir. So you are a complete package, ma'am. Wonderful. You could be used in much better way for the benefit of the faculty and to elevate the people. Yes, sir. Even Definitely, sir. Study of Aurobindo and Vivekananda would be very nice. Right. It's a wonderful amalgamation of Vivekananda and Aurobindo. Yes, Aurobindo. No, recently, yes, exactly, sir.
Now, I have published a paper on soft skills from Mahabharata. Right. So, with the characters of Mahabharata, I mean, I explain my students and in the placements training also, the attitudinal development and the professional skills development, what we have to learn from Mahabharata itself. Gita in Mahabharata. Yes. And Aurobindo is in course of PG classes also. Savitri Yes, and sir. some shorter poems. Yeah, I would post my mail ID and my number. If anybody is finding it useful, you can just contact me. Definitely. Thank you. And Right, ma'am. it was really resourceful. Many applications and many aspects. Really, I was able to learn, which I would impart in my class. Thank you very much, Wonderful. ma'am. Thanks a lot. Thank you so much. But I just hand- asked for your email ID in the chat box. I will just post it now, sir. I will definitely ma'am. post it now. My Right, number. ma'am. Yes, ma'am. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you very much, ma'am. Pleasure. Thank you, Yes, ma'am. Nurul. There is a comment Deepika. from my friend and the scholar of Dr. Anita Juneja ma'am, Mr. Chirantan Das Mahapatra. He writes that thank you, sir, for motivating us again and again to look at our inner self to tackle all adversities of life with positive outlook. Thank you very much, sir. And end the session. Actually, sir, I am unable to see the comments. Yes, there is a problem. So Miss Sunita is there I from can't see the Ranchi. comments, sir. Okay, no problem. I'll be reading it. Miss Sunita is there from Ranchi, Jharkhand. Miss Sunita, are you there? Miss Sunita from Ranchi? Sir, I posted my mail ID and my number, sir. Right, ma'am. I'll just take it. Sunita ma'am Oh, no has. problem. Thank you very much, ma'am. And Sunita ma'am has written something on chat box. Yeah, she has written about her. Yeah. Lalita ma'am also have written. Yes. Okay, Deepika, we can conclude. Thank you very much, sir. This whole session was very wonderful for me, and I hope for all the participants. And I have learned so much, and I enjoy it very much because this is my first opportunity, and I would like to pay gratitude to our master because he has given me the opportunity to be the event. Honestly speaking, before being part of this event, I was slightly nervous, but now I am more confident, and I would thank you all. So, can I have your contact number, sir? Yes, ma'am. I'm writing it there. Yeah. In the chat And your box. mail ID. Yeah. Yes, ma'am. It's there. Yes, ma'am. It's 94255 and drgag18@gmail.com. So thank you very much, Devraj. Thank you very much, Hitesh, and all those who have responded quite well. I do hope this session will bring many more insights into our lives, and life is always a journey to discover, rediscover ourselves. Whatever we learn, we need to relearn.
then we have to unlearn, and then once again we have to learn, because this is a complete cycle of learning, relearning, unlearning, and once again learning. So let us enjoy this beautiful life which is being given to us by the Almighty and make it sublime. So do you have, any things, sir? Group or a foundation like? Yes, I mean, ma'am, we do have by name ISPEL, which is known as Indian Society for the Promotion of English Language and Literature. That's fine, sir. But I just wanted to know if I could become a member of it or anything. Yes, you can, ma'am. I'll send you the link on Telegram, and if you have Telegram, you can become the member. And today also in the evening, we have a session on Italy in the Romantic Poets. Wow, So that's great. another session is there, Italy in the Romantic Poets, and that's an international session we have in the evening at 3:30 Indian Standard Time. So I'll send you the link of that also, and I'll add you in the Telegram group also. Okay, sir. Do you provide certificates for the participation? No, ma'am. As far as participation is concerned, we don't provide certificates, but we do provide certificates to the speakers, the moderators, and the chairpersons. Okay. Now, if participants do get certificates, it would be at least an A certificate. It would be better. What we have seen, ma'am, there are so many people, those who come only for the sake of certificate. And we cannot distinguish between the people because they just log in and they go there and they wait for the link for feedback and comments. And once the feedback is being, because once we did that, twice we did that, and we have seen the people, those who are not interested, even they too got the certificate. Then we thought it's better not to have certificate and only to have the knowledge out of it. Excuse me, sir. And if you don't mind, LTI, it gives certificate for people who attend the full session and who are interactive. Ma'am, you are talking about LTI. I was the president, national president of LTI for 4 years. I left LTI. I left LTI and I formed ISPEL because there were some conceptual differences between LTI and me. Otherwise, I was 8 years, I was the vice president of LTI. 4 years, I was the president of LTI. Even if you see the journals, my name is there. So it's a different issue and different thing. Okay. That's nice, sir, because unless participants respond, you cannot give them certificates, and it is not. That's right. It's a knowledge-based platform. I understand. Thank you, 100%. Thanks. And language, like mathematics, I tell my students, because unless and until they know the nuances, and unless they have the passion, they cannot come across any field of language or literature. That is there. Yeah. Thank you. Madam, instead of giving ordinary certificates, we are giving better certificates of appreciation to students. We are encouraging them to come forward and be the master of ceremonies or moderators or other things like that. That's great. That's great. And they need encouragement. That's more important. Thank you so much. Thank you, ma'am. We are highly obliged for your presence here. Thank you so much. Like, you can invite him for I would like to be a resource person also, no problem. Yes, so regarding that's what I was. Any program on literature, language, ELT or translation studies, and any professional skills development, placement training, whatever it is. Okay, ma'am. We are so honored. Thank you. It's my privilege. Thank you so much. Thank you very much, ma'am. Actually, facilitate to elevate is the motto of ISPEL. So that's why ISPEL does not provide any certificates to the participants also, I think. Okay. Thank you very much. Thank you all. Thank you, Deepika ma'am, for attending this session and moderating this session throughout. And I also give my special thanks to those who have commented well and participated actively here. Thank you very much. Thank you, sir. So I think we should adjourn now. Yes.
Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you very much, Deepika, for a wonderful deliberation. And you have hosted the event in a very nice way, though it was your first event, but you managed it so well. So I don't have the hat to say hats off to you.